द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की क्या कहानी थी। आज का जो ब्रिटेन हमें दिखाई पड़ता है, उस ब्रिटेन की क्या कहानी थी, उसके विषय में बताया है कि द मॉडल ऑफ द नेशन आर द नेशन स्टेट। Some scholars have argued is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. ग्रेट ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनने में किसी प्रकार के उथल पुथल या रिवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century. द प्राइमरी identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish। मतलब ब्रिटेन में जो है पहचान जो है, ब्रिटिश आइसलैंड्स में पहचान एथनिक थी, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश के रूप में वहाँ के लोग पहचाने जाते थे। All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions, but as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of Iceland। कह रहा है कि सभी जो ग्रुप थे, सबके अपने अपने कल्चर और ट्रेडिशन थे, पर जब इंग्लिश मैन के रूप में जिनकी पहचान थी, उन लोगों के अंदर जब पावर उन्होंने गेन करना शुरू किया, धन संपदा अर्जित करना शुरू किया, तो वो सभी ग्रुपों में इम्पोर्टेंस उनका धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड। द इंग्लिश Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity meant that Scotland
distinctive culture and political institution were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever that attempted to assert their independence. The Scottish Highlands were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland. Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholic and Protestant. The English helped the Protestant of Ireland to establish their dominance. Catholic revolts against British dominance were suppressed after a failed revolt led by Olaf Tone and his United Irishmen. 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. कहने का मतलब ये है कि the symbols of the New Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, the English language were actively promoted, and the older national survived only as subordinate parenters in this union. इंग्लिश ग्रुप के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों ने अपने स्कॉटिश, वेल्स और आयरिश के रूप में जो पहचाने जाते थे, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा करके उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के रूप में एक ब्रिटेन का नेशनल स्टेट बनाया, जिसमें जो सिंबल रखा गया वह यूनियन जैक, फ्लैग के रूप में यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबेल किंग, और लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया गया। और इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि 1688 में ब्रिटेन के अंदर बिना किसी टकराहट के, बिना किसी खून खराबे के, वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्ची से पावर को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल कर लिया।
मोनार्ची के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया। माने राजतंत्र की जो है शक्ति को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक तरह से कंट्रोल कर लिया, सीमित कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट जो है 1688 में हुआ। नेक्स्ट कंटेंट अपना है विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out of personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as a female figure. The female form that was chosen to person the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concerted form. That is, the female figure became an allegory of the nation. कह रहा है कि किसी राजा या किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी नेशन को का पोर्ट्रेट बनाना, किसी नेशन को एक पिक्चर के रूप में पिक्चराइज करना, एक फीलिंग देना, ये बड़ा ही कठिन काम था। बट 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्टों ने अपने अपने देश को पिक्चराइज किया, उसकी मूर्ति के रूप में अव्यक्त किया उसको, और मूर्ति के रूप में अव्यक्त विशेष तौर से फीमेल मूर्ति में किसी भी देश का जो मूर्ति स्वरूप सामने आया वह फीमेल के रूप में। जैसे अपने भी देश की बात करें तो भारत माता, हमारी जो पूरी लैंड है, जो धरती है, इस पूरे धरती को हम जो है भारत को एक माँ के रूप में देखते हैं। भारत की तस्वीर, भारत की पिक्चर को जो हम गढ़ते हैं, गढ़ा गया 20th सेंचुरी में, वह एक माँ के रूप में गढ़ा गया। उसी तरह से सभी देशों में जो मूर्ति की कल्पना की गई, पिक्चर का इमेजिनेशन किया गया, वह एक फीमेल के रूप में किया गया। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic। आपने शुरुआत में ही लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक
कि एक स्टैचू के विषय में नारी रूपक के रूप में प्रयोग किया गया फ्रांस की क्रांति के लिए, उसको आपने पढ़ा। दीज आइडियल वेयर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल एज यू वुड रिमेंबर द attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales। जस्टिस के रूप में भी जिसका चित्रण किया जाता है वो आप देखते होंगे, एक फीमेल महिला का जिसके आँखों पर पट्टी बंधी होती है और एक हाथ में तराजू लिए होता है, ली होती है, उसे जस्टिस के रूप में, न्याय की देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। सिमिलर फीमेल एलोगोरियस वेयर invited by artists in the 19th century to represent the nation in France. She was christened Marian, a popular Christian name. क्रिश्चियन मारियान, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade statues of Marian were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marian images were marked on coins and stamps। माने कॉइन्स के ऊपर भी मारियान के चित्र को अंकित किया गया। यह एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम मारियान दिया गया फ्रांस में, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसका जो सिंबल था वह लिबर्टी और रिपब्लिक, उसके सिंबल लिबर्टी और रिपब्लिक को प्रदर्शित करते थे, जैसे रेड कैप, ट्राई कलर, फ्लैग मीन्स तिरंगा और कलगी। मारियान की ये स्टैचूज सार्वजनिक पब्लिक प्लेसों पर लगाई गई ताकि जनता इसे यूनिटी के रूप में, नेशनल सिंबल के रूप में याद करें। इस नेशनल सिंबल को यूनिटी के रूप में देखें और उससे अपने को जोड़ सके। इस तरह से जो है
अब यहाँ सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मन में जो फीमेल फिगर बनाया गया उसका नाम जर्मेनिया दिया गया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स ए क्राउन ऑफ ओक लेव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। जो ताज है जर्मेनिया का, ओक लीव, ओक एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी पत्तियों से उसके ताज को बनाया गया। जर्मन में माना जाता है कि ओक जो है, ओक की पत्तियां हीरोइज्म माने बहादुरी की पहचान है। ओक की पत्तियां बहादुरी की पहचान है। इसलिए जो जर्मेनिया का फिगर ड्रा किया गया उसमें उसको जो ताज पहनाया गया वह जो है ओक की पत्तियों का ताज पहनाया गया, और एक हाथ में वो जो है तलवार लिए हुए है। यहाँ पर फिगर उसका ये देखिए, ये जर्मेनिया का फिगर है। ये जर्मेनिया का फिगर है, जर्मन के अंदर एक हाथ में तलवार लिए है, और इसकी तलवार पर खुदा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। और ये फिगर है 1860 का। 1860 में लॉरेंज क्लासन ने इस चित्र को बनाया था, और इस तरह से ये इस तरह से ये जो है नेशन को फीमेल पिक्चर के रूप में पिक्चराइज करने का प्रयास हुआ, और लोग अपने को इन पिक्चरों से, इन प्रोटेक्ट से, इन तस्वीरों से अपने को रिलेट कर पाते थे, उससे जुड़ाव महसूस करते थे। इसलिए राष्ट्र की जो है ये दृश्य कल्पना, सभी राष्ट्रों ने इस तरह की अपनी अपनी दृश्य कल्पनाएं की और उसको फीमेल के रूप में स्थापित किया। इस तरह से राष्ट्र की यह दृश्य कल्पना का यह कंटेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।